Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. It is time to study the polymerase chain reaction (PCR). It is one of the technique to clone a given gene. What is PCR? PCR polymerase chain reactions is a technique to produce millions of identical copies of a gene or small piece of DNA quickly in the laboratory test tube. पीसीआर क्या है? पीसीआर एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए एक जीन की एक स्मॉल पीस ऑफ डीएनए की मिलियंस इवन बिलियंस ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज लेबोरेटरी टेस्ट ट्यूब में प्रोड्यूस की जा सकती हैं. डिस्कवरी एंड advantages of PCR. This technique was first developed by Carey B. Mullis in 1983. PCR was discovered by Carey B. Mullis in 1983. Earlier methods of obtaining multiple copies of specific sequence of DNA were time consuming and expensive. इससे पहले भी डीएनए की मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करने के मेथड्स थे, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग थे, उनमें वक्त ज़्यादा लगता था और वो एक्सपेंसिव भी पड़ते थे. इन कंट्रास्ट, PCR can create millions of copies of a single gene or any specific piece of DNA quickly in the test tube. PCR has advantage that it can produce millions of copies of a single gene or a specific piece of DNA quickly and cheaply in the test tube. However, PCR has some limitations. That is, PCR is very specific. The targeted DNA sequence can be less than 1 part in million of total DNA sample. Targeted DNA, जिस डीएनए को हम क्लोन करना चाह रहे हैं, जिसकी कॉपीज बनाना चाह रहे हैं, वो कहता है कि पीसीआर बहुत मखसूस है. पीसीआर अ स्मॉल पीस ऑफ डीएनए, अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ डीएनए को एम्पलीफाई कर सकता है, उसकी कॉपीज बना सकता है. इसलिए उसने देखा कि द टारगेटेड डीएनए सीक्वेंस कैन बी लेस देन 1 पार्ट इन अ मिलियन ऑफ द टोटल डीएनए सैंपल. या दूसरे लफ्जों में इसका मतलब यह है, this means that a single gene or a smaller piece of DNA among all the human gene can be amplified, copied using PCR. PCR के जरिए हम ह्यूमन के तमाम जीन या पूरे डीएनए को एम्पलीफाई नहीं कर सकते एक साथ. एक सिंगल जीन या a smaller piece of DNA, a smaller piece of DNA among all the human gene can be amplified using PCR. तमाम ह्यूमन डीएनए में से, तमाम ह्यूमन जीन में से एक जीन या एक स्मॉल पीस ऑफ डीएनए को हम एम्पलीफाई कर सकते हैं यूजिंग पीसीआर. ये लिमिटेशन है इसकी. तो what are the limitations of PCR? PCR is very specific. That is, targeted DNA sequence can be less than 1 part in a million of the total DNA sample. This means that a single gene or a smaller piece of DNA among all the human gene can be amplified using PCR. Why is PCR given so name?
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर, इसका नाम क्यों पड़ा? पीसीआर टेक्स इट्स नेम फ्रॉम डीएनए पॉलीमरेज, the enzyme that carries out DNA replication in a cell. इस मेथोडोलॉजी में, इस टेक्निक में डीएनए की सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, जो सेल के अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन करता है, इसलिए इसको पॉलीमरेज कहा गया। PCR takes its name from the DNA polymerase, the enzyme that carries out DNA replication in the cell. और it is considered a chain reaction because DNA polymerase will carry out replication over and over again until there are millions of copies of the desired gene. वो कह रहा है कि पीसीआर को पीसीआर नाम इसलिए रखा क्योंकि इसमें जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो डीएनए पॉलीमरेज है, जो सेल के अंदर एप्लीकेशन करता है, और वो डीएनए पॉलीमरेज डीएनए की सिंथेसिस अगेन एंड अगेन करता जाता है, वो बार बार डीएनए की सिंथेसिस करता जाता है हत्ता कि मिलियंस कॉपी ऑफ डीएनए प्रोड्यूस हो जाती हैं, इसलिए इसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहा गया। PCR takes its name from DNA polymerase, the enzyme that carries out DNA replication in a cell. It is considered a chain reaction because DNA polymerase will carry out replication over and over again until there are millions of copies of the desired DNA. Can PCR be alternative to recombinant DNA technology? क्या पीसीआर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मुतबादल हो सकता है? पीसीआर कैन नॉट बी अल्टरनेटिव टू रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। पीसीआर डज नॉट रिप्लेस जीन क्लोनिंग, which is still used whenever a large quantity of gene or protein product is needed. पीसीआर जीन क्लोनिंग का रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मुतबादल नहीं हो सकता क्योंकि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैन प्रोड्यूस large quantity of a gene, or at the same time it can also produce the product of the gene. रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जीन की क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस होती है और लार्ज क्वांटिटी ऑफ जीन को इस्तेमाल किया जा सकता है एम्प्लीफिकेशन के लिए, और के साथ साथ जीन की प्रोडक्ट यानी प्रोटीन भी प्रोड्यूस हो सकती है। इसलिए उसने लिखा कि पीसीआर डज नॉट रिप्लेस जीन क्लोनिंग, विच इज स्टिल यूज्ड व्हेनेवर लार्ज क्वांटिटी ऑफ अ जीन और अ प्रोटीन प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड। Then what is the methodology involved in the technique? Some basic steps of PCR. To look here, this is a targeted DNA. ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिखाया गया, टारगेटेड डीएनए जिसकी क्लोन करना। पहले स्टेप में हीट दिस टारगेटेड डीएनए फॉर 1 minute at 94 centigrade to denature DNA strands. पहले स्टेप में वो जो टारगेटेड डीएनए है उसको हीट करना है 1 मिनट के लिए 94 सेंटीग्रेड तक। इससे क्या होगा? इससे डीएनए स्टैंड डीनेचर हो जाएंगे, मतलब डीएनए की दोनों स्टैंड सेपरेट हो जाएंगे। तो पहले स्टेप में in order to separate two strands of DNA, in order to denature two strands of DNA, targeted DNA is heated for 1 minute at 94 centigrade. ये
उस हीटिंग के नतीजे में डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो गई, ये दोनों डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। देन नंबर 2 स्टेप, ऐड प्राइमर and cool for 2 minutes at 55 centigrade। प्राइमर डालना है, प्राइमर साथ ही उस मिक्सचर को कूल कर लेना 55 सेंटीग्रेड तक। इससे क्या होगा, टू अनील द प्राइमर विद द कंप्लीमेंट्री साइड्स। जो प्राइमर आपने डाला है वो कंप्लीमेंट्री साइड्स के साथ अनील कर जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहां यह भी बात बतानी जरूरी होगी कि प्राइमर क्या है। प्राइमर इज अ सीक्वेंस ऑफ 20 न्यूक्लियोटाइड्स, ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड होंगे, 20 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस विच इज कंप्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्टैंड ऑन आइदर साइड। ये दोनों टेम्पलेट स्टैंड हैं। इन टेम्पलेट स्टैंड के दोनों साइडों पे, हर स्टैंड के इस साइड पे यानी 3 एंड जो होगा, इसके 3 एंड पे और इसके 3 एंड पे 20 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा। जो पेरेंटल स्टैंड है, ये वाली जो टेम्पलेट स्टैंड है, उनके कंप्लीमेंट्री होगा। मैंने 3 एंड इसलिए कहा कि जो प्राइमर होता है वो 5 से 3 डायरेक्शन में होगा। तो ऐड अ प्राइमर and cool for 2 minutes at 55 centigrade to anneal the primer with the complementary sides। दूसरे स्टेप में प्राइमर डालना है और मिक्सचर को 55 सेंटीग्रेड तक कूल कर लेना है। इससे ये होगा कि प्राइमर कंप्लीमेंट्री साइड के साथ जुड़ जाएगा। ये प्राइमर, ये जो येलो कलर में पीस ऑफ स्टैंड दिखाया गया है, ये प्राइमर है। ये प्राइमर इस तरफ भी अटैच हो गया और इस स्टैंड के प्राइमर, इसके भी 3 एंड पे प्राइमर अटैच हो गया। इसके बाद ऐड नंबर 3 स्टेप पे, ऐड डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एंड अदर रिएजेंट्स। अदर रिएजेंट्स में डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स, ट्राइफॉस्फेट, जो क्योंकि डीएनए की सिंथेसिस करनी है इसलिए न्यूक्लियोटाइड, उसके मोनोमर यूनिट्स जो हैं वो मौजूद होने चाहिए। तो डीएनए पॉलीमरेज डालना है, दूसरे रिएजेंट्स यानी डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स एंड हीट टू 72 सेंटीग्रेड टू बिगिन डीएनए सिंथेसिस। और फिर उस मिक्सचर को हीट करना है, 72 सेंटीग्रेड तक हीट करना है। इस टेम्परेचर पे डीएनए पॉलीमरेज इस प्राइमर को एक्सटेंड करना शुरू कर देगी, प्राइमर के ऊपर मजीद न्यूक्लियोटाइड ऐड करके डीएनए की सिंथेसिस शुरू कर देगी। तो पहले स्टेप में हमने टारगेटेड डीएनए को डीनेचर किया, 94 सेंटीग्रेड पे हीट करके 1 मिनट के लिए, फिर उसमें प्राइमर डाला और कूल किया 2 मिनट के लिए 55 सेंटीग्रेड तक, ताकि प्राइमर जो है वो कंप्लीमेंट्री साइड के साथ अनील कर जाए, जुड़ जाए। और फिर दूसरे रीजेंट यानी डीएनए पॉलीमरेज और न्यूक्लियोटाइड डालने हैं और 72 सेंटीग्रेड तक हीट करना है ताकि सिंथेसिस शुरू हो जाए। और नंबर 4, वेट फॉर 1.2 मिनट्स। 1.2 मिनट्स तक वेट करें। वेट करने पे ये डीएनए की सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगी। जो डीएनए स्टैंड सेपरेट होंगी, हर डीएनए सेपरेटेड स्टैंड के ऊपर उसकी कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड जुड़कर नई स्टैंड बन जाएगी। एंड देन द प्रोसेस इज रिपीटेड। इसी पूरे तमाम स्टेप्स को रिपीट करना और हर साइकिल के बाद कॉपीज जो हैं वो बढ़ती जाएंगी। ये मेथोडोलॉजी, सिंपल बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। Why there is a need of primer?
Before carrying out PCR, primer sequences of 20 bases that are complementary to the bases on either side of the target DNA must be available. वो कहता है पीसीआर करने से पहले प्राइमर्स जो 20 बेसिस का सीक्वेंसेस होंगे और जो 20 बेसिस जो हैं ये टारगेटेड डीएनए, ये टारगेटेड डीएनए की दोनों स्टैंड के जो एंड्स हैं उनके कंप्लीमेंट्री बेसिस होंगे. The primers are needed because DNA polymerase does not start replication process. क्योंकि हमें पता है, हम पीछे पढ़ के आए हैं कि DNA polymerase cannot initiate synthesis on its own, does not start the replication process. It only continue or extend the process. ये कंटिन्यू कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है, यानी ऑलरेडी प्रेजेंट स्टैंड हो तो उसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड ऐड करके उस चेन को एक्सटेंड कर सकती है. जब एक दफा प्राइमर मिल जाएगा, ये प्राइमर मिल जाएगा तो फिर डीएनए पॉलीमरेज इस प्राइमर के ऊपर न्यूक्लियोटाइड ऐड करके इसको एक्सटेंड कर देगी. इसलिए उसने लिखा कि बिफोर कैरिंग आउट पीसीआर, प्राइमर्स सीक्वेंस ऑफ 20 bases that are complementary to the bases on either side the target DNA must be available. The primers are needed because DNA polymerase does not start the application process, does not start DNA synthesis. It only extends the DNA. After the primer bind by the complementary base pairing to the target strand, जब प्राइमर टारगेट स्टैंड के कंप्लीमेंट्री बेसिस के साथ जुड़ जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज देन कॉपीज द टारगेट डीएनए. तो डीएनए पॉलीमरेज जो टारगेट डीएनए होगा उसकी कॉपियां तैयार कर देगी. देन एक और अहम बात, जब ये प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे इस जगह पर, एक दफा सिंथेसिस हो गई, जब प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो जारी बात है हमें दोबारा फिर डीनेचर करना है. पहला स्टेप डीनेचर करने का. जब डीनेचर करेंगे तो 95 सेंटीग्रेड पे हीट करना पड़ता है. जब ये 95 सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो जो एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज डाला हुआ हमने वो डीनेचर हो जाएगा. तो हर साइकिल के बाद अगर हम 94 सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज डीनेचर हो जाएगा, एंजाइम दोबारा डालना पड़ेगा, सिंथेसिस में इंटरप्शन भी होगी और एक्सपेंडिचर भी बढ़ेंगे. इसलिए किसी ऐसे एंजाइम की जरूरत है जो 95 सेंटीग्रेड पे डीनेचर ना हो. उसके लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो टैग पॉलीमरेज. DNA polymerase use is temperature insensitive, thermostable. आजकल पीसीआर में डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो टेम्परेचर इनसेंसिटिव है. उसके ऊपर हाई टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता, वो हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेता है. And this enzyme is extracted from the bacterium Thermus aquaticus, which lives in hot springs. जो गर्म पानी के चश्मों में रहने वाले बैक्टीरिया हैं थर्मस एक्योटिकस, उनसे डीएनए पॉलीमरेज एक्सट्रैक्ट किया गया है. वो टेम्परेचर इंसेंसिटिव है, थर्मोस्टेबल है. Commonly, this enzyme is known as Taq polymerase. It can withstand high temperature, which is used to separate the double-stranded DNA. ये हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेता है, और आपको पता है हाई टेम्परेचर किस लिए इस्तेमाल करते हैं? टू सेपरेट द डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डीनेचर करने के लिए. Therefore, replication need not to be interrupted by the need to add more enzyme.
जब टैग पॉलीमरेज इस्तेमाल कर लेंगे एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन में, तो रेप्लिकेशन के दौरान जो इंटरप्शन आती है मजीद एंजाइम डालने के लिए, जैसे मैंने बताया कि जब साइकिल को रिपीट करेंगे तो हाई टेम्परेचर 94 सेंटीग्रेड देना पड़ेगा डीनेचर करने के लिए। उस दौरान डीएनए पॉलीमरेज डीनेचर हो जाएगा, इंटरप्शन होगी मजीद एंजाइम डालने के लिए। तो उस सूरत में इंटरप्शन की से बचने के लिए ये वाला एंजाइम टाग पॉलीमरेज जो थर्मस एक्योटिकस बैक्टीरियम से आइसोलेट किया गया वो इस्तेमाल किया जाता है। तो व्हाट इज टाग पॉलीमरेज? टाग पॉलीमरेज इज अ डीएनए पॉलीमरेज which is extracted from bacterium Thermus aquaticus, which lives in hot spring. This enzyme is temperature insensitive thermostable, or it can withstand high temperature, which is used to separate double-stranded DNA. Therefore, replication need not to be interrupted by the need to add more enzyme. आखिरी बात, thermocyclers. PCR is done these days in an automatic PCR machine जिसको थर्मोसाइक्लर कहते हैं। ये जब से डिस्कवर हुई उसके बाद इसमें कई मॉडिफिकेशन हो चुकी, एडवांस फॉर्म में आ चुकी। ये जो हमने मुख्तलिफ टेम्परेचर का जिक्र किया था 95, 55, 72, ये खुद ही उसको मेंटेन रखती है। तो टैग पॉलीमरेज एंजाइम आने की वजह से और थर्मोसाइक्लर में मॉडिफिकेशन की वजह से, एडवांस थर्मोसाइक्लर की वजह से जो पीसीआर जो है वो ऑटोमेटेड प्रोसेस बन चुका है। तो पीसीआर इज डन नाउ दीज days in an automatic PCR machine or a thermocycler, which is a routine piece of equipment in any laboratory. आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।